رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. أشهد أن محمد رسول الله. ایک ہے ایک شخص معین المسیح الدجال، ان دونوں میں فرق ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا، وہ شخص معین ہوگا، اور اگر احادیث کا تتبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا، اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے، قرب قیامت کا، اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہے، ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قتل کرے۔ تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین، البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہے ان کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت ہے، ایک خاص دور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائے گی کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیات کیا ہے، میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان کو جو قواعد طبیعیہ ہے، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد طبیعیہ پر، بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتا۔ وہ معجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہے کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبیہ میں وارد۔ مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری ہوگی کہ اسے حاصل ہو۔ چنانچہ الفاظ یہ ہے کل غیث سے استدبرت ہردی، وہ ایک ایسے طوفان کے مانند جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آندھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا۔ آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے، اس طور سے وہ فتنہ پھیلے گا۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فلا تدعوا قریۃ الا حبطتها فی 40 لیلہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سی چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا 40 دن کے اندر۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا، گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے ماری ہو کر رہتا۔ اسی کے ضمن میں بعض اور روایات آئی، سواری جو ہے اس دجال کی اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کے سمجھ میں نہ آتا، اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے، لہذا وہ اس کا خچر اس کا جس پر سواری ہوتی ہے۔ لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر پڑے، اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 باع کا یعنی 80 ہاتھ کا ہو۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ 30 ہاتھ لمبا کان ہوگا اس کا۔ ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے، پھر اس کے بارے میں ان سب کو دوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگو بعد میں ہوگی۔ اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز چہار دانگ عالم میں بیک وقت سنیا۔ الفاظ یہ ہے ینادی بصوت لہو یسمع لہو ما بین الخافقین، وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص سنے۔ اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پردے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہنچ جائے گا۔ یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے معجزات کے لیے آئے۔ حضرت مسیح کے الفاظ جو ابرئ الاکمہ والابرص، کہ میں مادر ذات اندھے کو اور جو کوڑ کا مرض تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے، اور مادر ذات جو نابینا ہے، اندھا، بینائی اس کی آ جاتی تھی، اور کوڑی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا کوڑ درست ہو جاتا۔ ابرئ الاکمہ والابرص،
वही अल्फाज आए हदीस में कि दज्जाल को ये कुदरत हासिल हो जाएगी। नंबर 2 ये कि वो युह्यिल मौता, जैसे कि हज़रत मसीह के अल्फाज है, वो युह्यिल मौता, मैं जिंदा करता हूँ मुर्दे को। हज़रत मसीह फरमाते थे एक मुर्दे को कुम बिइज़्निल्लाह, वो खड़ा हो जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से दज्जाल को भी कुदरत हासिल हो जाएगी कि वो मुर्दे को जिंदा करेगा। मजीद वजाहत एक हदीस में ये है कि वो एक शख्स को आरी के साथ बीच में से चीरेगा, 2 टुकड़े कर देगा, फिर सीनेगा और जिंदा करते। मालूम ये हुआ कि इलाज मुआलजे का इल्म और दूसरे ये कि जर्राही का इल्म जो है वो अपनी उन बुलंदियों को पहुंचेगा कि इस हद तक इंसान की रसाई हो जाएगी। चौथी बात, उसको जमीन और फिजा पर इस कदर गलबा हासिल हो जाएगा, अल्फाज ये हदीस के यामुर समा फकम, वो आसमान को हुक्म देगा बारिश बरसा, वो बारिश बरसाएगा। वल अर्द फतंबुत, और जमीन को हुक्म देगा कि फसलें उगा, और वो उगाएगी। व यमुर्रु बिल खरबते व यकूलु लहा उखरुजी कुनूज़क, और वो किसी वीराने पर से गुजरेगा और उसे हुक्म देगा, वीरान चफियल मैदान, और हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल, और फरमाया उसका नतीजा ये निकलेगा ततबअहु कुनूज़ुहा, तो जमीन के जो खजाने हैं वो निकल के उसके साथ चलने शुरू हो जाएंगे। जमीन पर कुदरत, फिजा पर कुदरत। बारिश का हुक्म होगा, वो बारिश हो जाएगी, आसमान बारिश बरसाएगा, जमीन अपने खजाने उगल देगी। पांचवी बात, वयुबअसु माहु शयातीन अला सूरत मन माता, उसके साथ कुछ ऐसे शयातीन मबूस होंगे कि जो उन सूरतों को इख्तियार करेंगे उन लोगों की जो मर चुके, मिनल आबाए वल उम्महात वल महारिस, जो आबा व अजदाद और माएँ और दादियाँ और जो भी जान पहचान वाले लोग हैं जो फौत हो चुके होंगे, वो उनकी सूरत इख्तियार करेंगे। फताती अहदहुम फयकूलु अलस्तु फुलानन अलस्त तारिफुनी, फिर वो आएगा और वो शयातीन आएंगे और इंसान से किसी से बात करेंगे, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, क्या मैं तुम्हारा फना रिश्तेदार नहीं हूँ। अपनी निशानियां बयान करेंगे और लोग पहचानेंगे। ये वो अहादीस है कि जिनका जो नतीजा निकलता है उसको पहचान लीजिए। वो नतीजा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाली फितने के जो औसाफ बयान किए या जो अलामात बयान की, उनका हासिल ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वो बुलंदियां इंसान को हासिल हो जाएगी कि जो चीजें कभी रसूलों के मौजूदों से ज़हूर पजीर होती थी, वो कवानीन कबिया पर तसर्रुफ के बाइस खुद इंसान करने लगे। ये है दर हकीकत हासिल। चुनांचे आज आप देखिए, वो जो उसका गधा है वो हमारे आसपास के हवाई जहाज है, और आपको मालूम है कि ये रडार जो है इनके हवाई जहाजों के, ये बिल्कुल एंड्स पर होते हैं, इनके बाजुओं पर, और यही उनके कान है, इन्हीं से उन्हें वो मालूमात हासिल होती। फिर उनकी लंबाई चौड़ाई जो है वो कितनी है, और फिर ये कि उनके दरमियान फसल जो है वो 80 हाथ का या 40 बार का वो मौजूद है। और जहाज की एक उड़ान अब तो कई बार पहुंच गई कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के गिर्द में एक जहाज जो है वो चक्कर लगा लेता है चंद घंटों के अंदर। लेकिन ये है कि आम जो रफ्तार है उसमें भी एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक, एक जगह से जिसको हॉप करना कहते हैं, ये भी कम से कम 500-700 मील का आमतौर पर सफर जो है वो जहाज तय कर रहा है। इसी तरीके से हमारी जो साइंस की, खासतौर पर जो तिब्बी साइंस है, अब उसमें जिस तरीके से कि जिंदा रखा जाता है इंसानों, और वो वेजिटेबल चाहे कहा गया है उनको ह्यूमन वेजिटेबल्स, लेकिन ये कि दिल की धड़कन भी चलाए जा रहे हैं, खुराक भी पहुंचा रहे हैं। आदमी जो है वो जिंदा 7 साल तक जिंदा रहा था। और ये कि सर्जरी बास जानवरों पर तो ये बात हो चुकी है, ये काटे गए हैं और फिर उनको सी दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ये तमाम जो भी मोजज़े हैं इस वक्त साइंस दिखा रही है। इसी तरह अगर ये मोजज़ा देखना हो कि जमीन लको दक सकी, जहां कहीं कोई आसार नहीं थे किसी एक पत्ते तक के उगने के, अगर वहां लहलहाते हुए आपको जमन देखने हो, तो वैसे सबसे पहले तो ये मामला हुआ था इसराइल ने जो करके दिखाया था। लेकिन अब तो आप अबू धाबी चले जाइए, सऊदी अरब में चले जाइए। सऊदी अरब के अंदर हाल ये है कि आप अगर हवाई जहाज से सफर करें रियाद से जद्दे तक, तो आपको जगह जगह बड़े सर्कुलर पैचेस नजर आएंगे जहाज से निहायत ग्रीन, और उसके अंदर जो है आर्टिफिशियल इरिगेशन के जरिए से और बहुत उम्दा वहां काश्त हो रही है, और बहुत खूबसूरत फार्म है वो तमाम के तमाम सर्कुलर पैचेस। इसलिए कि जो इरिगेशन होती है वो उन व्हील्स के जरिए से होती है कि जो एक सर्कल में चलते हैं, और पानी की वो आर्टिफिशियल बारिश जो है वो होती रहती है। बाकी ये कि फिजा से आर्टिफिशियल रेन, ये तो बहुत ही सादा सी बात है कि फिजा के अंदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जरा तब्दील किया जाए तो बारिश आ जाती है। और बाकी रह गया आवाज का, यहाँ से वहां जाना, वो तो आवाज जो है ये तो आप सूरतें देख रहे हैं। आपको न्यूयॉर्क में बैठा हुआ खिताब करे, आप पूरी दुनिया के अंदर जहां चाहे, वो ऑल वर्ल्ड एंटीना आपके पास सिर्फ होना चाहिए। बाकी ये कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी शख्स का खिताब जो है वो सुन सकते हैं। तो मालूम ये हुआ कि दर हकीकत ये जो दज्जाली फितना है, ये जिसके औसाफ जो बयान किए गए, अभी मैं इसको लफ्ज़ फितना से ताबीर नहीं कर रहा, इसे जिस चीज ने फितना बनाया वो अभी मैं आपसे अर्ज करूंगा। लेकिन ये जितने औसाफ हदीस में आए, जितनी सिफात में याद हुई है, जो कवाइफ वहां सामने आ रहे हैं, उन सब का हासिल तो एक लफ्ज़ में ये है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वो इस दर्जे की हो जाएगी कि कवायद तबीया पर, फोर्सेस ऑफ नेचर पर इंसान को तसर्रुफ और तसल्लुत हासिल हो जाएगा, और वो इन्हें इस्तेमाल करेगा। और उस तरीके से उसके अंदर वो सारी की सारी कैफियत जैसे कि आज हम देख रहे हैं अपनी निगाहों के सामने, वो पैदा हो जाएगी। अब सवाल ये है कि इस शे को फितना किस चीज से बनाए, ये बात समझ लीजिए।
जहां तक साइंसी तरक्की का ताल्लुक है, तकनीकी तरक्की का ताल्लुक है, ये चीजें फिल असल फितना नहीं है। ये तो वो अल्लामा आदम अलअस्मा कुल्लहा का ज़हूर है। अल्लाह ताला ने अज़ल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो सलाहियत अता फरमा दी थी, ये एक्सफोलिएशन है उसकी, उसका उसका ज़हूर है। जैसे कि आम की गुठली में आम का दरख्त है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उसको दरख्त बनने में वक्त लगता है। पहले वो 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वो बढ़ता है मामला। कई साल में जाकर वो दरख्त जो है वो जवान होगा, वो फल देगा। इसी तरीके से यूँ समझिए कि बिलकुव्वा वो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। यानी वो सलाहियतें वरीयत कर दी गई, वो फैकल्टीज़ समा और बसर और फ़ुआद, देखो, सुनो, नतीजा निकालो और आगे बढ़ो। आपने एक चीज़ देखी, एक सुनी, नतीजा निकाला, उसको नोट किया, आगे बढ़े, फिर कोई चीज़ देखी, फिर कोई सुनी, आपने साबित जो नतीजा आपने निकाल कर महफूज़ किया था अपनी मेमोरी में, उसके साथ उसको टैली किया, कोई और नतीजा निकल आया और आगे बढ़े। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम इंसानी इल्म आगे बढ़ रहा है। ये हरगिज़ फितना ना होता, मेरे अल्फाज पर तवज्जो कीजिए, अगर इसके साथ मुतवाज़िन तौर पर ईमान और रूहानियत का इर्तिका भी होता रहे। अगर इसके साथ अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की मोहब्बत, आखिरत का ईमान, मंज़ूर इंसान की जो है वो आखिरत है, दुनिया नहीं है। अगर ये चीज़ें साथ के साथ होती तो ये हरगिज़ फितना। फितना दर हकीकत इसे जिसने बनाया है वो ये है कि कुछ ऐसे असबाब हुए हैं, और वो असबाब आज मुझे बयान कर दें कि दर हकीकत मौजूदा ईसाइयत उसका सबसे बड़ा सबब। उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा गैप है, अपॉलिंग गैप है, बड़ा मुहीम खला है, बड़ी वसी खलीज है जो हाइल हो चुकी है कि ईमान और रूहानियत खत्म होते चले गए और ये टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट बढ़ती चली गई। इन दोनों के दरमियान जो मुहीम खला पैदा हुआ है उसने इसे फितना बना दिया है, और अकीम तरीन फितना बना। वरना अगर उसके साथ ही अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान और इंसान के अंदर ईमानी कैफियत, उसकी रूहानी कैफियत अगर ये भी बरकरार लेती, बल्कि उसके साथ मुतवाज़िन तौर पर उनको तरक्की करना चाहिए था, तो ये हरगिज़ फितना नहीं है। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि अगरचे दज्जाली फितने के जो सिफ़ात, उसके औसाफ, उसकी अलामात, उसके मज़ाहिर, जो भी हदीस के ज़रिए से हमें मालूम है, जिसका मैंने अभी आपके सामने तज़किरा किया, वो सब दर हकीकत ताबीर है। उस दौर का जो मुहावरा है, उस दौर की जो ज़बान है, उस दौर में जिन अल्फाज से गुफ्तगू की जा सकती थी, उस दौर के ईडियम में आज की जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल तरक्की है, गोया कि उसकी ताबीर की गई है कि वो दज्जाली फितना होगा। लेकिन इस शय को फितना बनाने वाली शय दर हकीकत ये है, एक बहुत बड़ी खलीज हाइल हो चुकी है ईमान और रूहानियत, और दूसरी तरफ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इन दोनों के दरमियान इतना बोध और फख्र पैदा हो गया है कि जिसकी वजह से इसने फितने की शक्ल इख्तियार की। इसका सबब क्या है, आज हमें इस पर गौर करता है। देखिए, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का दीन, और जैसा कि मैंने अर्ज किया, इस सूरह कहफ के पहले रुकू में तज़किरा क्या हो रहा, वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम यक़ूलूना इल्ला कज़िबा फलअल्लका बाख़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। इन आयात का पहले तर्जुमा आप सुन लीजिए। तो पहली आयत है, उनका तर्जुमा हम कर चुके हैं। कुल हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाज़िल फरमाई और उसमें कोई कजी न रखी, जो बिल्कुल सीधी है, और खबरदार करती है एक ऐसी बड़ी अजीम और मुहीम जंग से कि जो खास अल्लाह की तरफ से होगी, और बशारत देती है मोमिनीन को जो नेक अमल करे कि उनके लिए बहुत बड़ा और बहुत उम्दा अज्र है। माँ किसी नफी अबदा, वो उसमें रहेगी हमेशा हमेश। वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अब दोहरा कर बात आई, और ताकि खबरदार कर दे उनको जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने किसी को अपना बेटा बनाया। मा लहुम बिही मिन इल्म, नहीं है उनके पास उसके बारे में कोई इल्म, वला लिआबाइहिम, न इनके आबा व अजदाद के पास कोई इल्म था, कोई अकली दलील नहीं, कोई अल्लाह की उतारी हुई किसी किताब में, अल्लाह के उतारे हुए किसी सहीफे में उसके लिए सनद नहीं। वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, बहुत बड़ी बात है कि जो निकल रही है इनके मुंहों से, इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, नहीं बोल रहे ये, नहीं कह रहे ये मगर झूठ। फलअल्लका बाख़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे इनके आसार पर। ये आसार के लफ्ज़ को मैं अभी यूं कतू रख रहा हूं, बाद में इसकी वज़ाहत करूंगा। इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा, अगर ये लोग ईमान न लाए किस हदीस पर, ये हदीस कुरान, इस पर अगर ये ईमान न लाए, जैसे कि वहां फरमाया गया था, अगर रहमत खुदाबंदी में दाखिल होना है ए बनी इसराइल, तो ये शाहदरा है रहमत खुदाबंदी का कुरान हकीम, आओ और दाखिल हो जाओ। यहाँ पर उन ईसाइयों को मुतनब्बे किया जा रहा है, अगर वो इस हदीस पर, ये हदीसुल्लाह, अल्लाह की किताब, अहसन अल हदीस किताब मुतशाबिहा व बिअय्यि हदीसिन बादहू युमिनून, अगर इस अल्लाह की हदीस पर, अल्लाह की किताब पर ये ईमान न लाए, तो जो इनके आसार होंगे, तो नताइज निकलेंगे, उन पर ए नबी शायद कि आप अपने आप को सदमे और बंद और गम से अलग कर। ये है दर हकीकत वो आयात की जिनमें तस्करा हो रहा है ईसाइयत का। लेकिन ईसाइयत से मुराद क्या है उसे समझिए। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का दीन तो बैन ही वही दीन था जो दीन आदम से लेकर मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालैहि वसल्लम जितने अंबिया आए हैं, उनके दीन में कोई फर्क,
दीन तौहीन वही ईमान। अलबत्ता शराए के अंदर शरीयतों में कोई तफसीली अहकाम में फर्क हुआ है, शरीयत मूसवी और शरीयत मोहम्मदी में अला साहिब सलात व सलाम थोड़ा थोड़ा फर्क है। दीन एक ही है। शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। दीन में तो हमने वही से तुम्हारे लिए भी मुअय्यन की है मुसलमानों, कि जिसकी कि हमने नूह को वसीयत की थी और जिसकी कि इब्राहीम को और मूसा को और ईसा को वसीयत की। दीन एक है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो दीन मसीही भी वही था, है नहीं जो दीन मोहम्मदी है और दीन मूसवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अलबत्ता हादसा जो निहायत अजीम पेश आया है, और वो ये है कि पॉल, साउल उसका नाम था पहले, जिसने कि अपनी जिंदगी में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम जब तक मौजूद थे दुनिया में, शदीद उन्हें तकलीफें पहुंचाई, शदीद ईज़ाएं पहुंचाई, उनकी मुखालिफत पर कमर बस्ता रहा। लेकिन उसके बाद जब उन्हें उठा लिया गया, या ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक वो सूली दे दिए गए, और उसके बाद उनका अकीदा भी ये है कि सूली पाने के बाद फिर वो जिंदा होकर आसमान पर चले गए। जबकि हम ये समझते हैं और हमारा ईमान है कि उन्हें सूली दी नहीं गई, बल्कि उन्हें तो पहले ही उठा लिया गया था, उनकी जगह कोई और है। इंजील बरनबास ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि दर हकीकत वही हवारियीन में से जिसने कि गद्दारी की थी और पकड़वाया था, मुखबरी की थी, वही है जिसकी शक्ल बना दी गई थी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के जैसी मानिन, और वो सरसे की जो सूली चढ़ा। बहरहाल ईसाइयत इस वक्त की जो उसका अकीदा है और जो हमारा अकीदा और ईमान है, उन दोनों की रूह से हजरत मसीह अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए। इसके बाद इसने दीन मसीही में नकब लगाने के लिए, जो दीन मसीह असल दीन इस्लाम था, उसको करप्ट करने के लिए, डिसरप्ट करने के लिए, उसमें नकब लगाने के लिए उसने अपने एक मुकाशफे का जिक्र किया कि मैं आ रहा था सफर में कि मुझे हजरत मसीह नजर आए हैं आसमानों में, और उन्होंने मुझे कहा है कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है, और तू अब फलां जगह जा और मेरे नाम से नबूवत कर। इसके बाद उसने लिबादा ओढ़ा ईसाइयत का, और उसने आकर जिस तरह अब्दुल्ला इब्न सबा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में नकब लगाई, उसी तरीके से इस शख्स ने दीन मसीह में नकब लगाई। फर्क यह है कि दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि, क्योंकि ये आखिरी दीन था, अब कोई और रसूल आने वाला नहीं था, अल्लाह ताला की तरफ से इस दीन को, इस शरीयत को एक प्रोटेक्शन हासिल है। लिहाजा एक जुज़ की हद तक गुमराही जो है फैल सकी, कुल पर मुहीत नहीं हुई। लेकिन बदकिस्मती से दीन मसीही के बारे में यह हुआ कि कुछ अरसे तक तो कशमकश रही है। असल दीन मसीही पर भी जो कारबंद लोग थे और जो उसके ऊपर मुस्तकीम रहे, वो कायम कुछ अरसे तक रहे हैं। लेकिन होते होते तकरीबन उस दौर तक आकर जबकि हुजूर की बेइज्जत हुई है, असल दीन मसीह के मानने वाले तकरीबन खत्म हो चुके थे, शाज लोग रह गए थे, और उनमें भी ये जुर्रत नहीं थी कि अपने असल दीन का वो इजहार कर। बल्कि होते होते इन 600 सालों के अंदर ये हुआ कि वही पॉलिज्म जो है दर हकीकत उसने ही मसीहियत की शक्ल इख्तियार कर। ये पॉलिज्म जो है, ये है दर हकीकत, यूं समझिए कि अदियान आलम की तारीख में सबसे ज्यादा गुमराह कुन मजहब, जिसका रद्द अमल पैदा हुआ है यूरोप में, जिसने कि इस दज्जाली फित्ने की शक्ल इख्तियार की है। मैं ये चाहता हूं कि उसके ज़िम्मन में चंद बातें आज आपके सामने रखूं। पौल ने जो दीन मसीही में या दीन इस्लाम में जो सही दीन है अल्लाह का, उसमें 3 तब्दीलियां बुनियादी की। सबसे पहला तो वही जो कुरान कह रहा है, अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। मसीह को, हज़रत मसीह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्हें खुदा का बेटा करार दिया। और इसमें भी नोट कीजिए, बेटे के लिए अरबी ज़बान में 2 लफ्ज़ है, इब्न और वलद। इब्न का लफ्ज़ ज़ू मानियैन है, 2 मानी है उसके। इब्न बेटे को भी कहते हैं, और इब्न का कोई मानवी ताल्लुक भी हो सकता है, सिर्फ बेटा नहीं। इब्न सबील मुसाफिर को कहते हैं, रास्ते का बेटा, यानी चूंकि रास्ते के साथ उसका एक ताल्लुक है, रास्ता चल रहा है, वो इब्न सबील है। इब्नुल वक्त, वक्त का बेटा, वो वक्त का बेटा उस मानी में नहीं है, बल्कि ये है कि जो हर वक्त जो है हालात के मुताबिक गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता चला जाए, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, वो इब्नुल वक्त है। तो इब्नुल वक्त इसी तरीके से जो मैंने दूसरी मिसाल दी है, इनको अगर आप सामने रखेंगे तो मालूम ये हुआ कि इब्न के तो दोनों मानी हो सकते हैं, लेकिन वलद ये बिल्कुल मखसूस है औलाद के मानी में। वलद ये तो गोया कि सुल्बी औलाद। और ईसाइयत वो है मजहब कि जिसने के बदतरीन शिर्क की सूरत इख्तियार की है, और उनके यहाँ अकीदे में ये अल्फाज है कि मसीह अल्लाह का, खुदा का सुल्बी बेटा है, ताकि कोई शक न रह जाए कि कोई और निस्बत है जिसे इब्न से ताबीर किया गया, कोई और ताल्लुक है जिसके लिए ये लफ्ज इख्तियार किया गया, सुल्बी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि ये खुदा का सुल्बी बेटा। और यूं समझिए अब इसका जो नतीजा निकला कि बेटा अगर किसी का है तो जाहिर बात है कि वो हम जिन्स है, हम नौ है अपने बाप का। इंसान का बेटा इंसान होगा, सैयदजादा जो है सैयद का बेटा सैयद होगा, मुगल का बेटा मुगल होगा, घोड़े का बेटा घोड़ा होगा, गधे का बेटा गधा होगा। मालूम यह हुआ कि बैन नहीं तो कुछ बाप होता है, कोई बेटा होता। लिहाजा इस लफ्ज ने दर हकीकत शिर्क की बदतरीन सूरत इख्तियार की कि बिल्कुल अल्लाह के बराबर, अल्लाह का हम नौ। गोया कि बदतरीन शिर्क जो है शिर्क फिल ज़ात है, और शिर्क फिल ज़ात की बदतरीन सूरत यह है कि जो ईसाइयत में आई है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सुल्बी बेटा करार दिया। अब इसके नतीजे में चूंकि जाहिर बात है कि आखिर बाइबल भी मौजूद थी, उस बाइबल को एकदम कैसे खत्म कर देता सेंट पॉल।
सेंट पॉल कहें या बहरहाल मैं तो लफ्ज़ सेंट उसके साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि हमें ये हिदायत है कुरान मजीद की भी कि जो बातिल माबूद बना लिए जाते हैं उन्हें भी हमको इनके लिए तौहीन वाले अल्फाज इस्तेमाल न करे, लिहाजा मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना जी तो चाहता है कि कोई और लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो भी इस वक्त दुनिया में उसका मारूफ नाम है पॉल, सेंट पॉल, तो उसने चूंकि जाहिर बात है कि पूरी बाइबल को कैसे खत्म कर दे, एकदम तौरात को कैसे खत्म कर देता। तौरात तो आज तक चली आ रही है बाइबल के साथ मिली, ये ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ये दोनों मिलकर बाइबल बनती। लिहाजा आप गोरख धंधा बनाना पड़ा उन्हें, वो तसलीस वाला गोरख धंधा, 3 में 1, 1 में 3, तौहीद भी है, तसलीस भी है, 3 में 1, 1 में 3, और ये वो शय है कि जिसने अकीदे का ताल्लुक अक्ल से मुनक़ते कर दिया। ये भी समझ में आने वाली बात है। 3 में 1, 1 में 3, एक गोरख धंधा है। नतीजा उन्होंने ये निकाला कि डॉगमा दर हकीकत उसका अक्ल से कोई ताल्लुक, डॉगमा बस अकीदा है, और इस अकीदे ही के ऊपर सारे दीन की बुनियाद है। बाकी वो अक्ल में आए ना आए, अक्ल के लिए काबिल कबूल हो या न हो, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगरचे हमारे यहाँ भी हम भी ये बात कहते हैं कि बहुत से हकाइक जो है कायनात के वो ऐसे हैं कि जिन तक अक्ल की रसाई नहीं, उसके लिए हम मजबूर हैं, मोहताज हैं वही की हिदायत के। लेकिन दो चीजों में फर्क कीजिए, एक है अक्ल से मावरा होना और एक है अक्ल के खिलाफ होना। इन दोनों चीजों में जमीन व आसमान का फर्क। एक वो हकाइक है कि जो अक्ल अज खुद उन तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो अक्ल तस्लीम करती है कि हाँ ये बात समझ में आती है। एक वो चीजें हैं कि जिनको अक्ल तस्लीम नहीं करती, तो एक है मुखालिफ अक्ल, एक है वराए अक्ल। इन दोनों में जमीन व आसमान का फर्क। हमारे दीन में तो अक्ल को अपील किया गया, लअल्लकुम ताक़िलून, लअल्लहुम याक़िलून, उलिल अलबाब अल्लज़ीना याक़िलून। अब जाहिर बात है कि अक्ल को हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, लाओ दलील अपनी, तो दलील से अक्ल से अपील की गई। और इसमें वो रिश्ता जो मैंने कई मर्तबा बयान किया अल्लामा इकबाल के अशार के हवाले से कि अक्ल गो आस्था से दूर नहीं, इसकी किस्मत पे पर हुजूर नहीं, और गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं। मंजिल तक तो अक्ल नहीं पहुंचाएगी, लेकिन रास्ता तो दिखाती है, और जब कोई वही की रोशनी सामने आती है तो अक्ल उसकी तस्दीक करती है। ये है हमारा मौक़िफ़ और ये है अक्ली माकूल मौक़िफ़। लेकिन ईसाइयत ने, बल्कि कहना चाहिए पॉलिज्म ने, मुझे यहाँ पर लफ्ज़ ईसाइयत अब इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, इसलिए कि हज़रत ईसा से अब इसकी निस्बत नहीं रही। हज़रत ईसा से इसकी निस्बत जो है ये मिसनोमर है, ये गलत नाम। दी 100 का मुसन्निफ जो है डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने ये बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा दर हकीकत मौजूदा जो ईसाइयत है उसे पॉलिज्म कहना चाहिए। ये पॉलिज्म है, क्रिश्चियनिटी नहीं। इसलिए कि दर हकीकत हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तालीम जब तक वो दुनिया में थे, वो ये नहीं थी कि जो पॉल ने दी। अलबत्ता उसने पॉल को बहुत बड़ा शख्स माना, इसमें कोई शक नहीं। ये कि उसने तारीख के धारे का जो है वो रुख मोड़ दिया है। अल्लाह ताला के सही दीन को गोया के कला कबा करके एक नया दीन इस तरीके से फैलाया है कि आज भी शायद दुनिया में कसीर तरीन तादाद ईसाइयत ही के नाम लेवाओं की है, वल्लाहु आलम, या गौतम बुद्ध के मानने वालों की है। बहरहाल ये कि बहुत बड़ी तादाद में आज हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की तरफ जो मंसूब है गलत तौर पर दीन, उसके नाम लेवा दिया है। इस एतबार से वो यकीनन इसका तो लगता है कि उसका नाम भी उसकी नाम में आए कि जिसने तारीख के ऊपर असरात अपने पैदा किए। और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जब तक दुनिया में थे, ईसाइयत की हकीकत बनी इसराइल या यहूदियत के एक फिरके से ज्यादा नहीं, डिटैच नहीं हुआ था ये दीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से। लेकिन ये कि पॉल ने इसे बिल्कुल एक मुस्तकिल बिज़ात, एक जुदागाना दीन की शक्ल दे दी है, तो ये पॉलिज्म ने दर हकीकत सबसे पहला काम ये किया कि अक्ल से बिल्कुल ताल्लुक मुनक़ते कर दिया। अकीदा, डॉगमा, डॉगमा जो है वो खिलाफ अक्ल, जो बात अक्ल में आए ना आए बस मानती। तो पहली तो यूं समझिए कि नकब जो लगी है दीन के अंदर वो इस तसलीस के हवाले से, और तसलीस का गोरख धंधा खिलाफ अक्ल, लिहाजा डॉगमा की जो लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है कि बस उसको तो हम मानेंगे, चाहे वो अक्ल के लिए काबिल कबूल हो चाहे ना हो। दूसरा, इससे भी ज्यादा देखिए, एक से एक बढ़कर ईंट रखी जा रही है। खिश्ते अव्वल तूने हक में मारकर तासुरैया मीरा बद्दी बात पे। दूसरा, कफ़ारे का अकीदा जो मबनी है सलीब के अकीदे पर। मसीह ने इंतहाई जिल्लत की मौत, यानी सलीब की मौत जो है वो खुद कहते हैं कि इंतहाई जिल्लत की मौत की। ये जिल्लत की मौत का बयाना इसलिए किया ताकि उसके मानने वालों की तरफ से कफ़ारा अदा हो जाए। मसीह कफ़ारा अदा कर चुका है, अब जो शख्स भी मसीह को मान लेगा उसकी गोया की निजात हो गई। उसका अमल से कोई ताल्लुक, अमल हो ना हो, बद किरदार हो, अच्छा किरदार वाला हो, नेक हो, भला हो, जैसा भी हो, बुरा हो, बदमाश हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, मसीह को मान ले सिर्फ मानने पर। इसलिए कि मसीह तो उसकी तरफ से कफारा पेश कर चुका। सारे गुनाहों का कफारा जो है मसीह ने इंतहाई जिल्लत आमेज मौत जो है कबूल करके गोया के अपने मानने वालों के तमाम गुनाहों का कफारा कर दिया। ये दूसरा अकीदा। इसका नतीजा क्या निकला? तसलीस ने अकल से ताल्लुक तोड़ दिया था मजहब का, इसलिए अमल से ताल्लुक हो। डॉगमा ही डॉगमा है, ना अकल से कोई ताल्लुक, ना अमल से कोई ताल्लुक, कोई ताल्लुक नहीं रहा। दीन की जड़ें जो है दोनों एतबार से, दीन तो नाम इन दो चीजों का, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, दोनों की गोया के जड़ें मुनहदिम हो गई, बुनियादें मुनहदिम हो गई, जड़ें काट दी गई कि ना उसका ताल्लुक अकल के साथ है ना अमल के साथ। तीसरी बात आई है, उसने कहा शरीयत मनसूख,
ये अजीब है, देखिए, जिसे आयरनी ऑफ फेट कहते हैं अंग्रेजी जबान में। अभी तक बाइबल के अंदर सेंट मैथ्यू के जो रिवायत है, मत्ती की इंजील से कहा जाता है गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, उसमें जो सरमन ऑफ द माउंट है, एक वाज होने के एतबार से वाकईतन मैं उसकी अजमत का बड़ा पाइल हूँ, अजीम तरीन वाज है दुनिया का। उसके शुरू में ये अल्फाज मौजूद है, डोंट थिंक आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय लॉ। आदमी ये ना समझना कि मैं शरीयत को खत्म कर दिया। वो ये कहकर गए थे कि शरीयत मूसवी तुम पर लागू रहेगी, आयद रहेगी, लेकिन पौल ने तीसरा लकब लगाया शरीयत साबित कर। उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई ये भी समझ लीजिए। हजरत मसीह ये कहकर गए थे कि मैं सिर्फ बनी इसराइल के लिए आया हूं, मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूं। इंजील में ये अल्फाज आज भी मौजूद। हजरत मसीह ने अपने हवारियीन को जब भेजा है कि अब जाओ तबलीग करो मेरी तरफ से, उसकी हिदायतों में एक हिदायत यह भी है कि तुम्हें सिर्फ इसराइलियों तक तबलीग करनी है, बाहर नहीं। मैं सिर्फ इसराइलियों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं। ये अल्फाज भी मौजूद है। अगरचे इस वक्त इंजील में जो अल्फाज है वो तो मैं समझता हूँ कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के शायान शान नहीं है, वहां कोई ना कोई तहरीफ हुई है लफ्जी, इसलिए कि वहां तशबीह दी गई है कि कोई अपने बच्चे के हिस्से की रोटी जो है कुत्ते के आगे नहीं डालता। गोया कि जेंटाइल्स जो है गैर बनी इसराइली, उन्हें इस जुमले की रूह से उन्हें कुत्तों से तशबीह दी जा रही है कि मेरे पास मेरे बच्चों के हिस्से की रोटी है, मेरे बच्चे हैं इसराइली, मेरी रोटी जो है ये जो मेरे पास है वो इसराइलियों के लिए है। कोई अपने बच्चों के हिस्से की रोटी कुत्ते को नहीं खिलाता। ये जुमला तो मैं समझता हूँ हजरत मसीह का नहीं हो सकता, लेकिन ये हिदायत कि तुम्हें तबलीग सिर्फ इसराइलियों में करनी है, ये कुरान मजीद की रूह से साबित है। इसलिए कि कुरान भी ये कहता है कि रसूलन इला बनी इसराइल, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम रसूल बनाकर भेजे गए थे बनी इसराइल की तरफ। इसलिए कि वो यूं समझिए कि जिसे हमारे यहाँ आम इस्तिलाहात में उलमा कहा करते ताजो तख्ते खत्म नबूवत, वो ताजो तख्ते खत्म नबूवत तो अभी मुंतज़िर था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, कि वही आएंगे तो उन्हीं की बेइज्जत होगी पूरी नौ इंसानी की तरफ। आपसे पहले किसी रसूल की बेशक पूरी नौ इंसानी की तरफ नहीं हुई, बशमूल हजरत मसीह अलैहिस्सलाम। और जो है रसूल जो आया है आपसे पहले अपनी अपनी कौमों की तरफ आया है। लेकिन इस पौल ने क्या किया, पहले तो ये उसूल तोड़ा। हम इस दीन मसीही की या जो पॉलिज्म है इसकी अब तबलीग करेंगे गैर इसराइलियों में। वहां उन्हें दिक्कत पेश आई, शरीयत मूसवी बड़ी भारी शरीयत थी। हाँ, वो भारी शरीयत जो है उसको कबूल करना तो लोगों के लिए आसान नहीं। तो उन्होंने ये किया कि ये शरीयत तुम पर शरीयत का बोझ तुम पर नहीं, बर्डन ऑफ लॉ ये तुम्हारे लिए नहीं है। और मैं यहाँ मिसाल दे देना चाहता हूँ, मैंने ही तारीख ने अपने आप को दोहराया है। अब्दुल्ला इब्न सबा ने जो फितना शुरू किया था हमारे यहाँ, हमारी तारीख में जो उसके असरात में पैदा हुए, उनमें से एक जो है वो शक्ल वो इस्माइलियत वाली है कि इस्माइलियत ने भी मैंने ही यही शक्ल इख्तियार की है। हिंदुस्तान में आकर जब इस्माइली दाइयों ने जब तबलीग की है तो शरीयत साबित कर दी। आज आपको जो इस्माइली मिलेंगे उनके यहाँ कोई शरीयत नहीं है, कोई नमाज मस्जिद उनकी होती नहीं, जमात खाना होता है, वो क्लब घर है, आते हैं जमा होते हैं, खाना खाते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर को बातें चीतें करते हैं। उनके ऊपर शरीयत है ही नहीं, ना रोजा है ना नमाज है। और बैन ही वही जो अख्तियारात मैं भी आपको बताऊंगा कि जो पोप के हैं वही इनके इमाम हाजिर के इख्तियारात। बहरहाल तीसरी नकब जो मैंने अर्ज की आपसे वो ये थी कि शरीयत मनसूख, इसका नतीजा क्या निकला। अब देखिए जरा गौर कीजिए, एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। वो खला कौन पुर करेगा? शरीयत के बारे में सारे इख्तियारात अब पोप को हाथे। वो जिस चीज को चाहे हलाल कर दे, जिस चीज को चाहे हराम कर दे, जिस चीज को चाहे करार दे दे कि ये ममनू है, जिस चीज की चाहे इजाजत दे दे। इसलिए कि अब शरीयत तो नहीं, खला है, उसमें सवालात तो पैदा हो गए, ये काम किया जाए या ना किया जाए, कौन करेगा? तो जब शरीयत खत्म हुई तो सारा इख्तियार पोप के हाथ में आ गया। ये मैं बाद में जरा और तफसील से बताऊंगा कि कैसे कैसे इख्तियारात मजहबी कवते के हाथ में आए हैं। इसके नतीजे में तारीख इंसानी में वर्स्ट फॉर्म ऑफ थियोक्रेसी पैदा। थियोक्रेसी किसे कहते हैं? जो आज की इस्तिलाह में गाली थियोक्रेसी। कायदे आलम के जुमले आपने कई पढ़े होंगे। इस्लाम में कोई थियोक्रेसी नहीं, मजहबी तबके की हुकूमत नहीं इस्लाम, और 100% दुरुस्त है। थियोक्रेसी कहते हैं एक मजहबी हल्के की, मजहबी तबके की हुकूमत, उसके हाथ में इख्तियारात आ गए। और कुरान मजीद में इसी वजह से इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह। इन्होंने अपने उलमा और सूफियों को अल्लाह के सिवा अपने माबूद बना लिया। हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए, ये हातिम ताई जो मशहूर है सखावत में, उनके बेटे हैं कबीला तै से इनका ताल्लुक है। हातिम ताई तो तै से है, उनके बेटे अदी है, ये ईसाई थे। ये जब ईमान लाए और फिर उन्होंने कुरान पढ़ा तो उन्हें एक इश्काल हुआ कि कुरान मजीद में तो हम पर इल्जाम लगाया गया है कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह। तो अर्ज किया उन्होंने, डरते डरते अर्ज किया होगा हुजूर की खिदमत में कि हुजूर ये बात तो कुछ दुरुस्त नहीं मालूम होती, हमने तो कभी अपने उलमा और रुहबान को खुदा नहीं समझा। वो इस मुगालते में थे कि जब तक सजदा न किया जाए चाहे खुदा नहीं माना गया। हुजूर ने पूछा क्या ऐसा नहीं है कि जिस चीज को वो हलाल कहते तुम हलाल मान लेते हो, जिस चीज को हराम कहते हराम मान लेते हो? ये तो है, यही कि फरमाया अरबाबा मिन दुनिल्लाह है। तहलील और तहरीम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह का, या अल्लाह के नुमाइंदे की हैसियत से उसके रसूल के पास है, इसको वही आती है। इसके बाद किसी को इख्तियार नहीं है। इज्तिहाद कर सकता है लेकिन इज्तिहाद के लिए दलील देनी होगी नस से
किताब अल्लाह से कोई दलील लाओ, सुन्नत रसूलुल्लाह से कोई दलील लाओ, इस्तिंबात करो, अक्ल से बात करो। लेकिन ये है कि तहलील और तहरीम ये खुदाई इख्तियार है, अल्लाह के हाथ में इसका इख्तियार है, और अल्लाह के नुमाइंदे की हैसियत से ज्यादा ये अल्लाह के रसूलों के हाथ में इख्तियार आता है। इसके अलावा किसी के लिए, किसी और के लिए ये मान लिया गया, तभी तो उनको खुदा बना लिया गया। इसी मानी में आज की जमहूरियत जो है वो बदतरीन शिर्क है कि यहाँ ये तस्लीम किया जाता है कि सॉवरेंटी जो है वो आवाम की है, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल। क्या मानी है कि आवाम के नुमाइंदे जो चाहे कानून बना, जिस चीज को चाहे हलाल ठहराए, जिस चीज को चाहे हराम ठहराए। इनके पास इल्लत और हुर्मत के जो पूरे इख्तियारात इनके पास आ गए। यही तो खुदाई मकाम है, खुदा का मकाम दे दिया गया। उससे बड़ा शिर्क क्या होगा? हकीकत आत्मीयत गैरुल्लाह इस दौर का सबसे बड़ा शिर्क। तो वहां ये हक जो है दे दिया गया उलमा के एक तबके को, पोप को। तो गोया के तारीख इंसानी की बदतरीन थियोक्रेसी, बदतरीन मजहबी इस्तिबदादी हुकूमत आई हुई है यूरोप में। उसके हवाले से मैं कुछ तारीखी हवाले भी अब आपके सामने रखूं। देखिए, जब तक पॉल ने यह काम शुरू किया है तो तकरीबन 3 सदियों तक तो ये सिर्फ एक मजहबी तबलीग का काम हुआ है। इन्होंने कोशिशें की, मेहनतें की, पैगाम पहुंचाया, और जैसा कि मैं कर चुका हूं, उस वक्त गडमट थे। पॉल के मानने वाले भी थे, और हजरत मसीह के जो असल सहाबा थे, जो उनके हवारीयीन थे, उनके मानने वाले भी थे। लिहाजा कशमकश इनके अंदर भी चल रही थी। लेकिन जाहिर बात है कि हजरत मसीह के असल हवारीयीन, वो तो अव्वल तो ये कि अपनी गुफ्तगू रख रहे थे महदूद बनी इसराइल तक। नंबर 2 ये कि उन्होंने तो शरीयत को साकित नहीं माना। जंगल की आग की तरह जो मसीहियत फैली है वो पॉलिज्म वाली मसीह, इसलिए कि उसमें तो कोई शरीयत का कोई बोझ नहीं, को हलाल नहीं, को हराम नहीं, को नमाज नहीं, को रोजा नहीं। लिहाजा ये तेजी के साथ फैली, और 300 बरस तक तो एक कशमकश जारी रही। इन्होंने तबलीगें की, मुसाइब झेले, कशमकश अंदर भी चली, बाहर भी चली। लेकिन इसके बाद कैसर रोम कॉन्स्टेंटाइन, कुस्तुनतीन जिसे कहते हैं, जिसका यह कुस्तुनतनिया है, कॉन्स्टेंटाइन, उसने यह महसूस किया बिल्कुल अकबर की तरह, जैसे अकबर ने महसूस किया था कि मेरी ममलकत के अंदर ये मजहबी तसादुम जो है ये सबसे बड़ी, वो समझिए कि इंस्टेबिलिटी का सबब है। लिहाजा इन तमाम मजहबों को एक हवन दस्ते में डाल के कूट पीस कर एक बनाओ। वो जो दीन अकबरी या दीन इलाही जो उसने किया था इस सियासी मसलात की वजह से, कि हिंदू मुस्लिम तसादुम और दूसरे मदाहिब का टकराव जो है वो हिंदुस्तान को एक सियासी वहदत और एक अपनी सियासी अजमत की तरफ पेशकदमी करने का जो रास्ता है इख्तियार करने से रोकता है। लिहाजा ये काम किया जाए, यही कुस्तुनतुन ने किया। उसने जब देखा बड़ी कशमकश चल रही है, उसने खुद ईसाइयत इख्तियार, ईसाइयत कौन सी इख्तियार की? पॉलिज्म वाली। जाहिर बात है उसके लिए भी असल ईसाइयत इख्तियार करना जो मुश्किल था, पॉलिज्म वाली। और उसके बाद ये अब स्टेट की जो मशीनरी थी, जो ताकत था, जो दबाव था, उसके हवाले से अब ये मसीहियत जो है पूरे रोमन अब्बार के अंदर अब ये बड़ी तेजी के साथ, जिसको कहना चाहिए, इसका एक निजाम कायम हुआ, और जो मजहबी तबका था उसका इख्तिदार मुस्तहकम। इसके बावजूद 200 बरस और गुजरे। यूनान चूंकि बहुत बड़ा मरकज था, इल्म का, फलसफे का, साइंस का, हिकमत का। आपको मालूम है ये तमाम अरस्तु हो, अफलातून हो, ये सब यूनान के हैं, अरशमेदेस हो, ये तमाम के तमाम जो भी है, तो साइंस और फलसफा दोनों उसका गहवारा यूनान था। यूनानी हुक्मा इतराज करते थे। लिहाजा सन 529 इसको नोट कर लीजिए। जस्टिनियन एक कैसेट था, अब कुस्तुनतीन के 200 बरस बाद, उसने अपनी पूरी ममलकत में फलसफा और साइंस की तालीम हराम करा दी। कोई ना फलसफा पढ़ सकेगा ना साइंस, जो फलसफा पढ़ेगा उसको मुर्तद करार दे दिया जाए और जिंदा आग में जला दिया जाए। इंक्विजिशन कोर्स कायम हुई। वो सिर्फ मजहबी अदालत इसलिए कायम होती थी कि जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये फलसफा पढ़ता है या ये साइंस पढ़ता है, इसलिए कि फलसफा और साइंस दोनों जड़ काटते हैं उस डॉगमा की। वो डॉगमा जो पॉलिज्म वाला डॉगमा है, इसकी जड़ खोदने वाली है दोनों चीजें, और चूंकि वो दोनों अकल को अपील करती है, ये डॉगमा अकल के मुतजाद है। लिहाजा मजहब का तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह हो सकता है कि अब इन दोनों को बिल्कुल ममनू करार दे दिया जाए। यूं समझिए कि तकरीबन 1000 बरस तक यूरोप में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही थी, यूरोप में फलसफा और हिकमत और ये साइंस की तालीम ममनू रही। ये है दर हकीकत सबसे पहला काम जो जस्टिनियन ने किया 529। उसके बाद आगे चलकर पोप का जो इख्तियार है वो इतना जबरदस्त बना है। पोप को इख्तियार हासिल हो गया जिस चीज को चाहे वो कानून का दर्जा दे दे, इसलिए कि शरीयत तो है नहीं, खला पोप कौन करेगा? पोप करेगा। पोप को इख्तियार हासिल हो गया, वो जिसके गुनाह चाहे माफ कर। अब देखिए, अदरचे वैसे तो गुनाह पहले ही माफ हो गए, जिसने मसीह को मान लिया गुनाह तो माफ हो गए अगले पिछले सब। लेकिन ये कि फिर भी एक खलिश रह जाती है इंसान के दिल में, क्योंकि एक अखलाकी हिस्स इंसान के अंदर अल्लाह ने पैदा हुई है। जब कोई शख्स करता है, कोई बदकारी करता है, कोई चोरी करता है, डाका डालता है, तो वो जो एक कॉन्शियस है, वो जो प्रिक करता है, उसको भी खत्म करने के लिए अगर पोप या कार्डिनल या उसके किसी नुमाइंदे के सामने जाकर एतराफ़ गुनाह कर लो और कुछ उसकी मुट्ठी गर्म करो, कुछ हदिया पेश करो, तो तौबा नामा, मुआफी नामा तुम्हें दे दिया जाएगा, और वो जो चीज है वो तुम्हारे लिए सनद है कि कोई तुमसे बात पर तुम्हारे गुनाह के नहीं हो। फिर इनकी कीमतें थी, उनके लिए बड़ी बड़ी जो है हदिया मुकर्रर किए गए थे। तीसरी चीज, बाइबल का अव्वल तो ये कि मफहूम जो है वो कोई सनद नहीं है, इसलिए कि बाइबल हॉन्ट कर रही थी।
اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی ہے، یہ حضرت مسیح کی یہ 4 انجیلیں بھی ہیں، یہ تعلیم کچھ اور ہے، لہذا بائبل جو ہے وہ سند نہیں ہے، سند پوپ کا جو ہے فرمان وہ سند، بائبل کی شرح کرنے کی، بائبل کی طرف سے کوئی دلیل لانے کی کسی کو کوئی حق حاصل۔ یہ جبر تھا، یہ تشدد تھا یورپ میں، یہ وہ دور تھا جبکہ اسلام پھیل رہا تھا۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا، نوٹ کرایا آپ کو، 529 میں جسٹینین کا یہ فرمان، 571 میں حضور کی ولادت ہو رہی ہے، وہی صدی ہے، اور 630 کے آس پاس، بلکہ 629 کے آس پاس سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا۔ تو یہ تاریخی دن کو ریلیشن جو ہے ذہن میں رکھی، جس وقت مسلمان آئے اور 200-300 برس جو ان کے عروج کے ہیں، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 6 صدیاں ہو چکی تھی کہ یورپ بالکل جس کو کہا جاتا ہے ڈارک ایجز، انتہائی تاریکی، مذہبی جبر اور استبداد، اس کے سوا کچھ نہیں، اور وہ ملاؤں کی حکومت جسے آپ کہیں گے، جسے آج کل کے اصطلاح میں کہا جائے گا، وہ جس کو چاہے جو چاہے سزا دے دے، پوپ کو اختیار حاصل ہے۔ کسی کے بارے میں ذرا جیسے بعض اوقات خبریں سچی ہیں یا جھوٹی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، جیسے خبریں آتی رہی ہے ایران کے بارے میں کہ کہیں اگر معلوم ہو گیا تو پاسداران انقلاب پہنچے اور سمری ٹرائل اور فوراً ختم کیا آتی، اس قسم سے انکوزیشن رپورٹس جو رہے وہ کورس وہاں قائم ہوئی، اور یوں سمجھیے کہ لاکھوں افراد تحریر کیے گئے، زندہ جلائے گئے۔ لیکن اس کے بعد جب عالم اسلام میں وہ روشنی پھیلی، اور خاص طور پر بنو عباس کے زمانے میں، اب بھاگ بھاگ کر وہاں جو بھی تھے فلسفے کے اور سائنس کے کوئی دلچسپی رکھنے والے، وہ بھاگ کر عالم اسلام میں آ گئے، یہاں کو کتابیں جو ہے ان کے ترجمے کیے، خاص طور پر مامون اور ہارون الرشید کے زمانے کے اندر یہ علم جو ہے ہندوستان سے بھی لیا، یونان سے بھی لیا مسلمانوں نے، اور اس کے بعد یہ گرناتا اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے اس علم نے پینیٹریٹ کیا ہے دوبارہ یورپ میں۔ دیکھیے سرکل کیسے بنا ہے، یونان کا علم آیا ہے پہلے عالم اسلام میں، مڈل ایسٹ میں، اور پھر ادھر سے ہو کر ٹکر کھا کر اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں پروڈیوس ہوا ہے۔ اس وقت پھر اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہوئی، اور ساتھ ہی تحریک احیاء العلوم رینیسانس، اس کے نتیجے میں وہاں بیداری پیدا ہوئی۔ لیکن یہ بیداری اب آپ نوٹ کر لیجئے، ایک تو پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا، اور کئی سو برس تک تصادم رہا کیتھولکس کے اندر اور پروٹیسٹنٹس میں، پورے اسلام کی تاریخ میں کبھی اتنے خونی فسادات نہیں ہوئے، کبھی بھی شیعہ سنی فساد بھی کبھی اکرا نہیں ہوا، اتنا کہ کئی سو برس تک رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے مابین یورپ میں ہوتا رہا۔ بلکہ اس کو تو ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ لگ بھگ 10 لاکھ افراد جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، یہ آپس کا تصادم جو تھا، پروٹیسٹنٹ مذہب جو پیدا ہوا اصلاح مذہب کی تحریک کے ذریعے سے، اور وہ رومن کیتھولک پابائیت والا نظام، ان کے درمیان جو تصادم ہوا، 10 لاکھ کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ آدمی مارے گئے۔ بلکہ فرانس کا ایک شہر ہے، وہاں تو 19 دن تک مسلسل قتل عام کیا گیا پروٹیسٹنٹس کا، اور وہاں حاملہ عورتوں کے جو ہے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کر ان کو بھی یہ ختم کیا گیا۔ یہ سارا ظلم جو ہے وہاں ہوا ہے، تصادم ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ خود سوچئے کہ کس قدر نفرت پیدا ہوئی عوام کے اندر مذہب سے۔ اس کے ساتھ جب وہ علم شروع ہوا، سائنس شروع ہوئی، لہذا علم اور سائنس دونوں کی جڑ میں مذہب سے شدید نفرت پیدا ہوئی۔ یہ ہے وہ سبب کہ جس نے یہاں سے راستے علیحدہ کر دیے، اور مذہب چونکہ جبر کرتا ہے، مذہب چونکہ عقل کے اوپر بیڑیاں بٹھاتا ہے، پہرے بٹھاتا ہے، بیڑیاں ڈالتا ہے، اور مذہب چونکہ تشدد کرتا ہے، لہذا مذہب کے خلاف ایک نفرت، ایک ریئیکشن، یہ ہے اس ساری سائنسی ارتقاء اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی جڑ میں مذہب سے نفرت جو ہے اس کے بیج بو دیے گئے، اور یہ 200-250-300 سال میں اب یہ جو تناور درخت بن کر آیا ہے کہ ایک طرف سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی آسمان کو چھو رہی ہے، آج انسان چاند کے اوپر تو انسان کے قدم جو ہے پہنچ چکے ہیں، اور آپ کا ایک راکٹ جو ہے وہ پورے تمام سیارے جو ہے کہ ہمارے سولر سسٹم کے ہے ان سب کا ٹکر لگا کر اور وہ اسے باہر چلا گیا ہے خلا کے اندر، کہا گیا کچھ پتا نہیں، لیکن یہ کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 77 کا چلا ہوا وہ، اور 12 برس تک اس نے سفر طے کیا ہے، ان کی کم سے کم سولر سسٹم کا جو ہے اس سے پورا جو ہے احاطہ کیا۔ اور جو میں نے آپ کو وہ احادیث سنائی ان کے حوالے سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ یہ سائنٹیفک، ساری کی ساری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، لیکن چونکہ اس کے ساتھ مذہب کا انکار ہے، خدا پر ایمان نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، روح کا گویا کہ انکار، روحانیت تو بہت دور کی بات ہے، روح کا بھی انکار۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے مابین وہ گیپ جسے میں نے کہا ہے پالنگ گیپ، ایک بہت بڑا گیپ ہے جو پیدا ہو چکا ہے۔ اب میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری شریف میں جو روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، الفاظ یہ ہے انہو مکتوب بین عینیہ کافارا، علیحدہ علیحدہ، یقرأہ کل مومن کاتب و غیر کاتب، وہ اس طرح نمایاں لکھا ہوا ہوگا کہ ہر شخص اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ لکھنے والا ہو چاہے نہ ہو، لکھا پڑھا ہو چاہے نہ ہو، یعنی اس تہذیب کی پیشانی پر کفر لکھا ہوا، مذہب سے دشمنی، مذہب سے بہت، مذہب سے دوری، مذہب کی ہر چیز کی دفع۔ آج جو ایک ورلڈ سویلائزیشن ہے، ایک عالمی تہذیب ہے جس کا کہ غلبہ ہے ہمارے اس پورے گلوب پر، اس میں 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں کی اہمیت ہے۔
खुदा की अहमियत नहीं है, खुदा हम इनकार भी नहीं करते, लेकिन हम जानते भी नहीं कि है कि नहीं। हाँ, अहमियत कायनात की, और करो, कायनात के कवानीन को समझो, एक्सप्लॉइट करो, कुव्वत जो है, नेचर की कुव्वत उसको मुसख्खर करो, उसको इस्तेमाल करो। होगा खुदा, है या नहीं है, छोड़ो इस बहस को। असल अहमियत जो है वो पाई। इसी तरह असल अहमियत इस जिस्म की, बात देखिए, वो होगी कोई शय हमें नहीं पता, ना हम देख सकते हैं, ना हम उसे छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, होगी। लेकिन ये कि असल जो है अहमियत को बात देखिए इसके। इसी तरीके से हयात दुनियावी, असल से हयात दुनियावी, इसको बनाओ, संवारो, बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारो, वेलफेयर स्टेट हो, बहुत ही उम्दा माहौल हो, और हर चीज को, लेकिन हयात खुद ही होगी। अब तो आराम से गुजरती है, आखिरत की खबर पता है या नहीं है, इससे हमें कोई बहस नहीं। तीन चीजों के मुकाबले में तीन चीजों की अहमियत, या यूं कहिए कि तीन चीजों के मुकाबले में मुकाबल की तीन चीजों को बिल्कुल गैर अहम, उसकी तरफ को तवज्जो, तवज्जो का इर्तिकास कायनात पर है, जाते बारी ताला पर। जातो सिफात बारी ताला एक सिर्फ इल्मी मौजू है, असल तवज्जो किस है? कायनात। रूह होगी कोई शय, असल शय जिस्म है और मात्रा। हयात उखरवी हमें नहीं पता, किसी ने वापस आकर खबर नहीं दी मरने के बाद, लिहाजा हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं। अलबत्ता यह कि हयात दुनिया की तो है, इसको मजबूती के साथ थामो, इसको बेहतर बनाओ। तवज्जो का असल इस्तिकास हयात दुनियावी, ये है वो ग्लोबल सिविलाइजेशन जो दर हकीकत यूरोप से उभरी, और यूरोप से उभरी है उसकी बुनियाद में मजहब की दुश्मनी मौजूद थी, जो रद्द अमल सदर हकीकत उस पापाहियत के निजाम था जो पॉलिज्म के जरिए से दुनिया में कायम हुआ। ये वजह है, और आज इंसान जहां खड़ा है, गौर कीजिए, इंतहाई खौलनाक जंग जो है वो उसके सर पर एक खतरे के तौर पर मुसल्लत है। दो जंगें इस एक सदी में ऐसी हो चुकी हैं जिन्हें अपने वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू इतने बड़े पैमाने पर कत्लो गारत दुनिया में पहले कभी नहीं। इसलिए कि पहले फौजों की जंगें होती थी, आबादियों पर जाकर कहीं को कत्ले आम हो गया, पर नहीं कि कब्जा लिया। पहले वो किसी और की रैयत है, किसी और की रैयत हो गई। आया बाबर आया, उसने पानीपत के मैदान के अंदर इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी, दिल्ली में आकर उससे किसी का खून निभाया, बस वो आके तक पड़ता नहीं लोगे। कहीं कहीं हुए हैं फितने या फिर अदाब इलाही आते रहे हैं कि रसूलों के इनकार की सदा के तौर पर कौमें नसिया मनसिया की रही है। लेकिन जंगें जो दुनिया में होती थी, वो जंगों का मामला जो है वो इस तरह का होता, वो फौजों के दरमियान टकराव होता था, मैदान जंग में कुश्तों के पुछने लगते थे, लेकिन उसके बाद नहीं हो गया, कहीं किसी ने बहुत गुस्सा निकाल लिया। लेकिन इस सदी में अब जो जंगें हुई है, उससे तो मुल्क के मुल्क में आबादी रसम, और जो तीसरी जंग होगी ये जान लीजिए, आखिर इंसान कब तक उसे टालेगा। रशिया के बारे में ये समझना कि वो पीछे हट गया है, पसपाई इख्तियार कर ली, उसका बहुत बड़ी हिमाकत है। वो दर हकीकत अब डिप्लोमेसी की राह से सुप्ती मेसी चाहता है, लिहाजा तसादुम तो सुन कर रहे। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख्यालात ये है, वो मुझे इस सूरह कहफ के इब्तिदाई आयात के ज़िमन में मुझे उनसे इत्तेफाक है, बहुत सी चीजें उनसे महफूज है। इसी तरीके से जो हदीस अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक सामने उसका मतलब नहीं है। मौलाना हामिद मियां रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो मैंने जमा किए हैं हालात वाकयात, क़यामत से पहले जो हालात वाकयात पेश आने वाले हैं, जिनकी पेशिंग गोई अहादीस में है, उनसे मालूम होता है कि एक बहुत बड़ी खौफनाक जंग, इतनी बड़ी खौफनाक जंग, और उनके अल्फाज ये है कि उसमें दोनों फरीक जो होंगे, उनमें बड़ी तादाद ईसाइयों की होगी, उधर भी इधर भी। एक तरफ अलबत्ता ईसाइयों के साथ मुसलमान भी होंगे, यहूदी भी होंगे, और दूसरी तरफ खालिस ईसाई था, और इनके दरमियान इतनी खौफनाक जंग होगी। अल्फाज उनके ये है, उस हदीस के जो उन्होंने मुझे बताए, एक परिंदा सैकड़ों मील तक परवाज करेगा और उसे सिवाय लाशों के और कुछ नजर। आप तस्वुर कीजिए, अगर एटॉमिक बार हो जाती तो यही होगा, गैसलेस हो जाएगा, बात खत्म होकर रह जाएगी। और ये चीज जो है, ये बहरहाल ये जितना कुछ पाइल अप किया गया है, ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स, साइंस की यूं समझिए कि मेराज अब यही है। अब तो स्टार वार्स की बातें हो रही है कि सिर्फ जमीन पर नहीं, बाहर भी ये जंगें हमें लड़नी पड़ेगी। लेकिन ये कि इसका क्या हाल होगा। अमेरिका में एक पिक्चर तैयार की गई थी, डे आफ्टर गालिबन उसका नाम है, उसमें एक दृश्य दिखाया गया है, इस कदर हौलनाक, ये 100 और ऊंची मंजिला इमारतें जो है, ये ऐसे जैसे कि कच्चे घरों होते, ऐसे वो पिघल कर रह जाएगी। और यूं समझिए कि इंसान जो उनके अंदर होंगे, एक एक मंजिल के अंदर, एक एक ऐसी 100 मंजिला इमारत के अंदर हजारों आदमी होते हैं, जैसे कि कोई ऐसी कॉलोनी हो, कोई इनकी च्यूटियों की, और उस पूरी कॉलोनी को आप अपने पांव से बसल दे, ऐसे इंसान होगा अगर वो जंग हो जाती, जिसका नक्शा खींचा गया। ये है दर हकीकत वो बात कि जो मौलाना मनाजिर हसन गिलानी फरमा रहे हैं इन आयात मुबारका में, वयुनज़िरुल्लज़ीना क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदा, ताकि खबरदार कर दे ये कुरान उन लोगों को जिन्होंने कहा है कि अल्लाह ने बेटा बनाया, बदतरीन शिर्क का जिन्होंने इर्तिकाब किया, और इसी वलदियत मसीह के अकीदे से वो सारी करप्शन जो है दीन खुदाबंदी की, दीन मसीह की असल जो दीन था, उसकी जो हुई है, उसके नतीजे में आज नौ इंसानी वहां खड़ी है। इसीलिए आयत नंबर 2 में फरमाया वयुनज़िरल बासन शदीदम मिन लदुन, ताकि खबरदार कर दे बहुत बड़ी जंग से। हमारे अक्सर मुफस्सरीन ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा अजाब कहकर जो है वो गुजर गए,
लेकिन बाहिर लफ्ज़ कुरान मजीद का ये मकाम में जहाँ लफ्ज़ पास आया और मौलाना बनानी हसन गिलानी ने बहस की, बात तो जग को कहते कुरान मजीद में जहाँ भी ये लफ्ज़ आया तब तो कहते। तो एक बहुत बड़ी हौलनाक जंग जिसके लिए फरमाया मिल्लतुन हो, ये तुम्हारे अपने पैमानों पर नहीं आएगी, ये तुम्हारे हिसाब किताब में नहीं आ सकता जो डिस्ट्रक्शन होगी। जैसे कि आप इल्म लदुन नहीं कहते, एक इल्म वो है जो जाने बुझे तरीके से हासिल किया जाता है, एक इल्म लदुन नहीं है। तो खाक अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को अता फरमा दे, उस जंग की जो हलाकत खेदी है वो तुम्हारे हिसाब किताब में आने वाली नहीं है। युनज़िर बासन शदीदन मिन लदुनहु व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन हसनन माकिसीन फी अबदा। अलबत्ता अल्लाह ताला बचाएगा अपने अहले ईमान बंदों को जो नेक अमल पर भी कायम। अब मैं वो हदीस आपको सुना दूं, मैंने पहले बुखारी की हदीस आपको सुना दी कि उस पूरे फितने के मालूम होगा कि उसकी दोनों आंखों के माबेन काफारा लिखा हुआ है। गोया कि ये सिंबल है, ये आलम, ये अलामत है इस जदीद मौजूदा तहजीब की कुफ्र, इल्हाद, माता परस्ती, खुदा का इंकार, आखिरत का इंकार, रूह के वजूद का इंकार। इसके बाद फरमाया, ये अबू दाऊद की रिवायत है, वल्लाह है तो खुदा की कसम वो वक्त जब आएगा, इन रजुल आती है वो यासिबु अन्नहु मुमिनुन, एक शख्स हाजिर होगा उसके पास, दज्जाल के पास, और वो शख्स अपने आप को मोमिन समझता होगा कि मोमिन है। शुबहात, लेकिन जो शुबहात इस फितने की वजह से उसके अंदर पैदा हो जाएंगे, उसकी वजह से वो भी उसी की पैरवी करे। आज आप आलम इस्लाम की रक्षा देख लीजिए, ज़हनों के अंदर जो शुबहात है, ईमान के बारे में यकीन की कैफियत कितनों को हासिल है, वही सारी हमारी भी वैल्यूज है, वही मादी तहजीब जो है, आज हम भी उसी के पैरोकार हैं। समझते हैं अपने आप को मुसलमान, समझते हैं मोमिन, लेकिन जरा फैसला कीजिए। इसी को मैंने अपने उस किताब में इस्लाम की रक्षा सानिया में तफसील से वाज़ेह किया कि दर हकीकत जगह पै में सराहत कर गई ये तहजीब का जाहिर जो है नजर आता है। जैसे मुँह अर्जी पर जमीन के ऊपर तो आपको कहीं ऊंचाई नजर आ जाएगी, कहीं नीचाई नजर आ जाएगी, कहीं पानी है, कहीं खुश्की है। जरा ऊपर चले जाए तो हवा है, हवा का खिलाफ पूरे कुरे अर्जी को अपने अंदर लिए हुए। यही हाल है हर मुल्क में, आज चले जाए नीचे के लोगों में कुछ मजहब अदब नजर आ जाएगा थोड़ा बहुत। हिंदुस्तान में भी अगर कोई मंदिरों में जाता तो बाकी आदमी जाते हैं, बेचारे नीच लोग जाते हैं, बड़ा लोग आदमी कोई नहीं जाता। हमारे यहाँ भी जाके होते हैं मसाजिद में, सफारा तो गरीब, पर्दा रखते हैं अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। शहरों में कारोबारी तबका जरूर ऐसा है जो नमाज रोजे के साथ उसका एक शौक है, लेकिन आप जाके देख लीजिए देहात के अंदर क्या हाल है। तो मालूम यह हुआ कि नीचे तो शायद कुछ ना कुछ फर्क है, ये मुसलमान मुल्क है, ये हिंदू मुल्क है, ये फला मुल्क है, ये बुद्ध का मुल्क है, लेकिन ऊपर चले जाए यानी हर मुल्क के ऊपर जो एलीट है, जो आला तालीम याफ्ता, तो आपकी मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी है टॉप की, वो तो एक ही रंग में रंगे, उनका लिबास वही, उनका रहन सहन वही, उनका तमद्दुन वही। नाम का फर्क अगर ना हो तो पता नहीं चलेगा ये मुसलमान है कि हिंदू है कि सिख है। पर पता चलेगा वीपी सिंह नाम है तो पता चलेगा कि हिंदू है, लेकिन ये कि बाकी उसकी बदाकता, उसका लिबास, इसका उठना बैठना। आप यहाँ ये तो कुछ अवामी दौर में आके कुर्ता शलवार जो है वो आई है, लेकिन वो भी अंदरूनी मुल्क होती है, बाहर जाकर हमारे अपने लोगों के जो लिबास होते हैं आपको देखिए कहाँ फर्क मालूम हो जाएगा कि कौन मुसलमान और कौन हिंदू और कौन कौन पारसी और कौन ईसाई। तो मालूम यह हुआ कि ऊपर एक ही ग्लोबल सिविलाइजेशन है जिसका दौर हो रहा है, और इस सिविलाइजेशन के बातें पर लिखा हुआ काफारा, इसमें वो ईमान नहीं है, इसमें इल्हाद है, मादा परस्ती है, कुफ्र। इसमें आखिरी हदीस जो मैं आपको सुना रहा हूं, हुजूर ने फरमाया आखिरु मन यखरुजु इलैहिन निसा, इस फितने की तरफ पेशकदमी करने वाला आखिरी तबका होगा औरतों का। वो जब इस तहदीद की तरफ लपकेंगे, ये तबका जब आगे बढ़ेगा, ये जो हमारे यहाँ भी जुलूस निकलते हैं, शरीयत का मजाक उड़ाने वाले जुलूस, इस्लामी अहकाम की नफी करने वाले जुलूस निकलते हैं, और उनके जिस तरीके से डिस्प्ले होता है बारात के अंदर, जितना उनके लिए एजाज है, जितनी उनके लिए यहाँ पर तकरीम है हमारे माशरे के अंदर, उसको पेशेनजर रखिए। आखिरु मन यखरुजु इलैहिन निसा इन रजुला लयरजु इला उम्मिही व इब्नतिही व उख्तिही व अम्मतिही व युसिकुहा रिबातन, यहाँ तक कि एक बंदे मोमिन का हाल ये हो जाएगा कि वो दौड़ेगा और कोशिश करेगा अपनी माँ को, बेटी को, बहन को, फुप्पी को बांध कर रखे कि वो निकल ना जाए। ये हाल हो जाएगा किसी शख्स का। आज कितने लोग बेबस हो चुके हैं, अब वो बांध कर रखने वाले भी गोया के हथियार डाल चुके। वरना ये कि गौर था कि कुछ ना कुछ बांध कर रखने वाले तो थे, लेकिन अब तो आजादी की सूरत आई है, तो बांध कर रखने वाले जो है वो आकर, अब तो आप देखेंगे अच्छे भले नजरिए आता है, दाढ़ी रखी हुई है, सुन जो है मजहबी मिजाज के है, लेकिन बिल्कुल बेपर्दा को खातून जो है ऐन उनके सूट के पीछे बैठी हुई, या उनके कार के अंदर उनकी बराबर की सीट पर बैठी नहीं जा रही। बेपर्दगी, ये इबाहियत, हमारे अखबार का जो हाल है उसको देखिए। खुदा के लिए ये रंगीन सफात बंद करो, लेकिन मजाल है जो किसी के कान पर टूटा। यार हदीस के अल्फाज नोट कीजिए, आखिरु मन यखरुजु इलैहिन निसा, इस फितने की तरफ पेशकदमी करने में आखिरी तबका जो होगा वो खवातीन का होगा। रजुला लयरजु इला उम्मिही व इब्नतिही व उख्तिही व अम्मतिही, यहाँ तक कि आदमी दौड़ेगा, पकड़ेगा अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी फुप्पी को, उसे बांधने की कोशिश करेगा कि कहीं वो इस तरीके से इस दज्जाली फितने के अंदर जो है वो उसी के पैरवी के अंदर घर से बाहर निकल रहा।
یہ ہے وہ فتنہ جس کی لپیٹ میں سب پوری نہیں آئی. اب نوٹ کیجئے اس فتنے کے لیے اب میں چند باتیں اور کہہ رہا ہوں. لغوی بحث کیا ہے؟ دجال کسے کہتے ہیں؟ یہ بنا ہے لفظ دجل سے. دجل اور فریب یہ ہماری زبان میں بھی مستعمل. دجل اور فریب دھوکہ دینے والی شے. ملمہ حقیقت کچھ ہو اوپر کچھ اور پردہ ڈال دیا گیا. یہ دجل نمائی دو فروشی دجل ہے فریب ہے. اسی کے لیے دوسرا لفظ عربی زبان کا جو قرآن میں قصص ہے وہ غرور دھوکہ. اصل میں یہ دنیا دھوکہ ہے جو حیات اخروی کے لیے پردہ بن کر ہماری آنکھوں پر پڑ گیا. میں وہ